Okay, so we are going ahead with the probability chapter, in which I'm going to now focus on the sums which has equally likely outcomes. 90% of your sums would be that only. We'll assume equally likely outcomes in 90% cases where when it is mentioned that the die is biased, or when it is mentioned that in the experiment you have to consider that the outcomes are not equally likely, then only we focus on that aspect. Otherwise, all these sums which I'm going to do now, majority of the sums in the chapter will be considering the outcomes are equally likely. I again will tell you that, advise you that कि अगर दिया रहेगा तो ही लेना है biased, तो ही लेना है not equally outcomes, not equally likely outcomes. But in all our cases, we are going to assume the outcomes are equally likely. अगर दिया है तो ही consider करना है. Okay? So probability in sample space of equally likely outcomes. How it works? सैंपल स्पेस है मेरे पास. सैंपल स्पेस में ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, गोज ऑन टिल ओमेगा n है. So there are n outcomes and all are equally likely लेना है. So equally likely outcomes, जैसा अपन ने एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं हेड्स और टेल्स वगैरह के, वो टाइप के एग्जाम्पल्स हैं. तो हाउ इट वर्क्स, राइट, जैसा अपन ने देखा उसमें 1/4 1/4 1/4 1/4 आता है. हम लोग 1/4 लेते हैं तो क्या वो एक्सियम्स के हिसाब से आता है? यस, वो भी एक्सियम्स के हिसाब से आता है. तो व्हाट डज एक्सियम्स टेल अस? कि सबका प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐसे ऐड करोगे, द एक्सियम्स टेल अस कि सबका प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए. If you add all the probabilities, you should get it as 1. बराबर. बट सबका probability तो सेम है. They all are equally likely. So हम लोग बोलेंगे K सबका हम लोग probability add करेंगे. It is K equal to 1. So if you're adding K, everybody's probability you're taking as K and you're adding it n times, बिकॉज ओमेगा एन तक जाना ना, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा एन, तो एन टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? एन के. सो एन के इज 1. एन के इज 1 एंड दैट्स वेयर आई कैन से के इज 1 बाय. सो एवरी आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1 बाय n. Okay, every outcome the probability is 1 by n in equally likely outcomes. सबका सेम आएगा, सबका 1 by n आएगा. तो अगर हमारे पास इवेंट ए में, राइट, अगर हमारे पास इवेंट ए में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा करके ओमेगा m सैंपल पॉइंट्स है, m सैंपल पॉइंट्स है, then what will be the probability of event A? Probability of event A will be probability of omega 1 plus probability of omega 2. ऐसा हम लोग को लेके जाना होगा till probability of omega m. So probability of omega 1 1 by n, probability of omega 2 1 by n, goes on till probability of omega m 1 by n. तो ऐसा 1 by n अगर मैं ऐड करूंगा तो हो नहीं जाएगा m by n, because you're going to do this addition how many times? M times, because there are m equally likely sample points we have. सबका 1 by n प्रोबेबिलिटी है, इसलिए तो उसको इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस बोलते हैं. सो यहाँ पे सैंपल स्पेस में देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, सो एक्सियम्स के हिसाब से ही है सब. देखो, सो हर आउटकम के प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐसा ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए. तो अगर आउटकम इक्वली लाइकली है तो सबको हम लोग के लेके 1 आ जाएगा. nk is 1, k is 1 by n. now it is 1 by n, so we get m by n. but अभी m by n तो स्कूल में किया हुआ है, which is number of favorable outcomes. Okay, number of favorable outcomes upon number of
total outcomes. Favorable outcomes upon total outcomes, m by n. M is favorable outcomes. M is the number of favorable outcomes. N is the number of total outcomes. You can't use this in the previous problem. उस प्रॉब्लम में यूज नहीं होगा जो मैंने पहले वीडियो में किया. अभी जस्ट हम लोग ने डाई वाला किया जहां पे फेस का प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. नहीं कर सकते वहां पे आप फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं कर सकते. वहां पे आपको इंडिविजुअली सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हर फेस का प्रोबेबिलिटी अलग है. यहाँ पे हर सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी सेम है. तो ऐसा इंडिविजुअली नहीं ऐड करके अगर आपने फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला भी यूज किया चल जाएगा. बट एक्सियम्स के हिसाब से डेफिनेशन वो एकदम सही है जो अपन ने अभी किया स्टार्ट में. ये भी एक्सियम्स के हिसाब से ही है. बट अभी आगे के सम्स में मैं कंसिडर करने वाला हूं. अगर मुझे नहीं बोला गया तो मैं कंसिडर करने वाला हूं एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. एंड मैं प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल नंबर. ओके, बट दीज आर द एक्सियम्स वेयर एडिशन हैज टू बी 1. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग के क्वेश्चंस अभी. यस, इट इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ओनली. ये टॉपिक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. सो हमारे पास लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टोरी है. यू कैन से ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. सो अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं मतलब परम्यूटेशंस आएगा. सो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू, सिंपल है, 5 ऑब्जेक्ट्स है या 5 लेटर्स है तो हम लोग 5 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज करेंगे. So total number of arrangements will be 5 factorial. अभी पहला इवेंट बनाएंगे हम लोग. इवेंट बनाएंगे, we are going to see arrangements where t and y are together. So we are going to take an arrangement where t and y are together. So we are going to take such arrangements. कितने arrangements हैं हमारे पास? इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे तो बहुत सारे 120 अरेंजमेंट्स है, 5 फैक्टोरियल. उसमें से वही अरेंजमेंट्स पे फोकस करूंगा मैं जिसमें टी एंड वाई साथ में. तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग? मैं बोलूंगा टी एंड वाई को अपन एक यूनिट ले लेंगे. फिर बचेगा क्या ऑब्जेक्ट्स में? एस बचेगा, ओ बचेगा, आर बचेगा. So number of ways in which event A can occur. When will event A occur? When you see the word and you see T and Y together in that word, तभी event A occur होगा. तो ऐसे कितने words है, कितनी बार event A occur हो सकता है? कितने words है ऐसे जहां पे T and Y are together? I'll say it is 4 factorial. हम लोग T Y को साथ में रखेंगे इसलिए 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए. इनटू टी एंड वाई आपस में अरेंज कर सकते हैं. सो टी एंड वाई अगर आपस में अरेंज कर सकते हैं तो उसका हम लोग को अलग से लेना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. सो वी आर गोइंग टू से कि इट इज, या फिर इसको ऐसे रखते हैं डायरेक्ट अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? हम लोग बोलेंगे यहां पे हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम होने वाला है. सो मेरे पास कितने आउटकम्स है? 120 आउटकम्स है. 120 आउटकम्स है तो हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 by 120. अकॉर्डिंग टू द एक्सियोमेटिक अप्रोच इक्वली लाइकली अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि क्यों कोई दूसरा आउटकम किसी और से ज्यादा टाइम आना चाहिए या किसी और से उसका प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए. ऐसा कोई रीजन नहीं है हम लोगों के पास बिलीव करने के लिए. सो देयर आर 5 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दिस वर्ड स्टोरी. अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसको. 120 अरेंजमेंट्स है, हर एक का प्रोबेबिलिटी सेम लेना है. हर एक का प्रोबेबिलिटी लेना है 1 by 120. ओके, फिर उसमें से कितने मेरे इवेंट के लिए फेवरेबल है उतनी बार मैं 1 by n को ऐड करूंगा. सो कितने हैं? 24 into 2 48.
यस इट इज 48. सो फॉर्मूला बन जाता है कि हम लोग 48 टाइम्स वो 1/20 लेने वाले हैं. इन शॉर्ट जो आपने स्कूल में पढ़ा वही कि 48 टाइम्स हम लोग 1/20 लेने वाले, मतलब इट इज फेवरेबल अपॉन टोटल m/n. एंड यहां पे फिर आपको आंसर आ जाएगा कट होके 2/5. सो यस उसके बेसिक है ये अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे हम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. सम बहुत बेसिक है बट आई वांटेड टू क्लियर द बैकग्राउंड फर्स्ट बिकॉज यहाँ पे ऐसे सम्स आने वाले हैं ही डेफिनेटली जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो सब आउटकम्स का सेम नहीं होने वाले, बट वो कम है. 10% 15% सम्स है बट है वो कॉन्सेप्ट है. तो पहले हम लोग को वो कॉन्सेप्ट करेक्ट करना था हमारा. So that's why I started the lecture and spent majority of the time explaining the definitions and the axiomatic approach. Definitions में random experiment, sample space, events के अंदर mutually exclusive events, exhaustive events, then we have elementary events, impossible events, certain events, वो सब कर दिया. फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच देखा और अभी देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच इन इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है हमको फेवरेबल अपॉन टोटल. अल्टीमेटली वही है बट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में वो नहीं चलता अगर हम लोग यूज करते तो. ठीक है आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज इवेंट ए विच वी वर टॉकिंग अबाउट. नाउ एक नया इवेंट बनाना पड़ेगा विच विल टेल अस द सेकंड केस. राइट तो इसको मैं बी मान के चलता हूं. इवेंट बी begins with T, ends with Y. So number of ways where the word is going to be starting with T and we are going to have end with Y. So यहाँ पे T fix है in one way. T ही चाहिए और कुछ आ ही नहीं सकता है. पीछे Y ही चाहिए और कुछ नहीं आ सकता है. इसका भी वन वे है. यहां पे बीच में यू कैन हैव 3 लेटर्स S O R अरेंजिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. वो लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं. अभी आपस में वो लोग अरेंज करेंगे, आपको परम्यूटेशंस देंगे तो हम लोग बोलेंगे 3 फैक्टोरियल वेज है उसका. सो हो गया, दैट्स इट, सिंपल. सो इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, वेरी सिंपल. इट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 factorial. It is 1/5 into 4 which is 20. 1/20. स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा. बहुत सिंपल सम है ये. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज कर रहा हूं मैं. परम्यूटेशंस का यूज कर रहा हूं. नेक्स्ट सम अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी आर गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशंस इन दैट सम. सिलेक्शन का सम है इसलिए क्वेश्चन इज 5 employees. Now this is 5. I think so the board is shining over here but this is 5. 5 employees in the company of 20 are graduates. Okay. So एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे आइडिया हम लोग का जो है वो ले लेते हैं in the form of a diagram. We have 5 employees which are graduates. And 15 remaining are not graduates. 15 are not graduates. 3 are selected at random. तो 20 में से अगर हम लोग 3 सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आ जाएगा? We are going to get 20 C3. We can calculate this number 20 into 19 into 18 upon 321. बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे. हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते वक्त यूज कर लेंगे, कैलकुलेशन तभी कर लेंगे. बट 20 C3 कॉम्बिनेशंस है. हर कॉम्बिनेशन इक्वली लाइकली है ऐसा मान के चलना है. सो वी हैव 20 C3 कॉम्बिनेशंस एंड एवरी कॉम्बिनेशन इज इक्वली likely. Okay. Now out of these 20 C3 combinations, what we have to do? We have to find probability that all are graduates. Okay.
So A is the event that all selected people, selected persons are graduates. Okay, so हमारे सैंपल स्पेस में मैं बता देता हूं आपको, ऐसा सैंपल स्पेस हो सकता है ग्रेजुएट 1, नॉट ग्रेजुएट 1, नॉट ग्रेजुएट 10. हाँ, बिकॉज नॉन ग्रेजुएट्स तो 15 है हमारे पास, सारे के सारे नॉन ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं. ऑर्डर विल नॉट मैटर, इसको घुमाने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा. मतलब यू कांट से N5 N2 N1 को भी गिनो लाइक हियर, यहाँ पे गिनना है बिकॉज अरेंजमेंट है. यहाँ पे N1 N2 N5 खत्म हो गया, N5 N2 N1 को नहीं गिनना है फिर. ओके, फिर यहाँ पे हम लोग को ग्रेजुएट 1, ग्रेजुएट 2, ग्रेजुएट 5 ऐसा मिल सकता है. ग्रेजुएट 1, ग्रेजुएट 2, नॉट ग्रेजुएट 10 ऐसा मिल सकता है हम लोग को. ऐसे हमारे पास कितने हैं टोटल? 20 C3 लिखा है मैंने यहाँ पे. 20 C3 नंबर आएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस. आउट ऑफ दीज सिलेक्शंस ये टाइप का ही सिलेक्शन चाहिए मुझे. G1 G2 G5 या फिर G1 G2 G3 या तो फिर G1 G2 G1 G2 G4 G3 G4 G5. सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे सिलेक्शंस के लिए तो तुमको फिर सिलेक्शन के टाइम पे सारे ग्रेजुएट्स ही दिखने चाहिए और उसी में से सिलेक्शन बनाओ. यू कांट मेक देम अवेलेबल. बाजू में नॉन ग्रेजुएट लिखूंगा मैं और उसको फिर यूज करूंगा तो फिर मेरे सिलेक्शन में नॉन ग्रेजुएट्स भी आ जाएंगे. मुझे मेरे सिलेक्शन में नॉन ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए. सो व्हाट यू डू इज टोटल में फेवरेबल टोटल में ग्रेजुएट्स नॉन ग्रेजुएट्स दोनों टाइप के सिलेक्शन आएंगे. खाली ग्रेजुएट्स के भी आएंगे, खाली नॉन ग्रेजुएट्स के भी आएंगे, मिक्स भी आएंगे. बट जब मेरे को फेवरेबल चाहिए, फेवरेबल ढूंढ रहा हूं मैं, तब मैं बोलूंगा कि सिंस आई वांट ऑल माय सिलेक्शंस टू बी मेड अप ऑफ ओनली ग्रेजुएट्स, ऑल माय सिलेक्शंस टू बी मेड अप ऑफ ओनली ग्रेजुएट्स, देन those type of selections would be the selections where we are going to select 3 out of these 5. 5C3 हो जाएगा. 5C3. ओके, ये 5 में से 3 सिलेक्ट करेंगे और ये टाइप के कॉम्बिनेशंस ही मेरे फेवरेबल कॉम्बिनेशंस है. अंडरस्टैंड? टोटल कितने? 20 C3. सिलेक्शन में कुछ भी आ सकता है, सारे ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, सारे नॉन ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं. सैंपल स्पेस में सभी है. बट मुझे फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स अगर बनाने हैं तो खाली ग्रेजुएट्स को लेके बनाने हैं. तो देयर विल बी ओनली 5C3 लाइक दीज सैंपल पॉइंट्स. ओके, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेंगे and we are going to get P of A as N of A upon N of S, 5C3 upon 20C3. okay, कैलकुलेशन देखो, ऊपर आएगा 5 4 3, उसके नीचे आएगा 3 2 1 अपॉन 20 19 18, उसके नीचे वापस आएगा 3 2 1. यस, ये 3 2 1 डायरेक्ट कट हो जाता है. देन वी हैव 5 4 20, वी हैव 3 6. सो आंसर में आएगा 1/6 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे 54, 5 कैरी ओवर 114 आ जाएगा. 114, 1/114 इज द प्रोबेबिलिटी. दैट इज द अकरेंस पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ए. मतलब सिलेक्शन में हम लोग को सारे ग्रेजुएट्स आएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/114. सो 20C3 is total, 5C3 is favorable. You want your selections to be made up of only graduates. next में वो लोग बोल रहे हैं, अभी मैं इसको रब कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी इन इक्वली लाइकली आउटकम्स. okay, so we'll have some space
and we go to the next question, part B of this question. In fact, part B पे जाते हैं. Part B says there should be at least one graduate. Now I have done this during set theory, during permutations, combinations also, कि जब भी हम लोग को आता है number of ways in which we want at least one graduate, right? We say it is total मतलब अपना sample space हो गया, minus the number of ways when there is no graduates or none is graduate. Okay, I have not written event B, but you can write event B is at least one graduate. So at least one graduate is total minus none is graduate. Okay, so अगर मैं ये फाइंड करता हूं नंबर ऑफ वेज इन विच आई गेट एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, डायरेक्ट कर देता हूं, ये ज्यादा लिटरेचर नहीं यूज कर रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट कर देता हूं मैं. टोटल अपने पास क्या है, एन ऑफ एस. ओके, सो एक काम करते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी डिवाइडिंग बाय एन ऑफ एस थ्रू आउट. तो इसको आप एन ऑफ एस से डिवाइड करोगे तो ये P प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर ये एन ऑफ एस से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा. वो माइनस एन ऑफ नन इज ग्रेजुएट इवेंट अपॉन एन ऑफ एस, तो वहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रेजुएट. व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पे आने के लिए, यहां से लेके ये स्टेप पे आने के लिए आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय एन ऑफ एस थ्रू आउट. सो उसमें ना एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस अपना 1 हो जाएगा. सो एटलीस्ट वन इज टोटल माइनस नन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, बिकॉज वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसमें से नन का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे. So probability of at least one graduate is 1 minus none is graduate. Okay, so here we come with this probability of at least one graduate is 1 minus none is graduate. None is graduate मतलब हम लोग को सारे के सारे सिलेक्शंस इसके अंदर से करने हैं और हम लोग को कोई भी ग्रेजुएट नहीं लेना है. सारे के सारे सिलेक्शंस यहां से करने हैं, इस 15 नॉन ग्रेजुएट्स में से करने हैं. सो आई विल से इट इज 15C3 अपॉन 20C3. तो वो हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं. वो आउटकम्स जहां पे ग्रेजुएट्स है ही नहीं वो हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो वो हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं. यहां पे वी गेट 1 माइनस 15 14 13 अपॉन 3 to 1, वापस आएगा 20 19 18 अपॉन 3 to 1, राइट. अपॉन 3 to 1 आएगा बिकॉज वो C है ना नीचे, 3 to 1 3 to 1 वो कट हो जाएगा. If you don't write, it's okay. And then you can do the calculations. Okay, subtraction कर लेंगे, calculations आप कर लो, that will be your answer. So probability of at least one graduate is 1 minus none is graduate. सुई ऊपर मैंने 15C3 क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे एक भी ग्रेजुएट नहीं चाहिए सिलेक्शन में. सिलेक्शन में एक भी ग्रेजुएट नहीं चाहिए. दैट इज फेवरेबल. टोटल में तो आते ही है, ग्रेजुएट्स भी आते हैं, नॉन ग्रेजुएट्स भी आते हैं, सभी टाइप के लोग आएंगे सिलेक्शन में. बट फेवरेबल क्या है, सबट्रैक्शन करना है. फेवरेबल क्या है उस टाइम पे, नो वन शुड बी ग्रेजुएट. So you will select from 15. Favorable is 15C3, but total is 20C3. That is the probability. Okay? Yes. So we are going to do 2 more sums. I'll be covering it in the next video.